हर इसमें हाय हाय हाय। The original constitution. मुझे देख के आपको मेरा स्कूल ढीला लगता है? Are you all human by any chance? Hi guys and welcome back to my channel. So it's my day 2, rather it's our day 2 at Vivibha 2024 National Conference at SGT University Gurugram Haryana. It's a day which is fully packed of sessions, but at the end of the day we will also get to enjoy a cultural event which is hosted by the students of SGT University. But before that, we wanted a group photo of us and there was no one around. So this police uncle came up and helped us in a very kind way. So thanks to Haryana Police as well. ये स्कैनर है, दिस इज़ द स्क्रीन। तो अगर मैं स्क्रीन के सामने जाकर मेरा ये आई कार्ड आई स्कैन, अरे हाँ आ गया। After getting all the instructions for the whole day, it was a time for very first parallel session for us, which was obviously related to the topic environment conservation for prosperous Bharat, and speakers were Chetan Solanki sir, who is professor at IIT Bombay and also referred as Solar Man of India or Solar Gandhi. And second speaker were Anuruddh Pandit ji, who is Vice Chancellor at Institute of Chemical Technology, Mumbai. And third person was Rahul Bharti ji, Executive Director of Maruti Suzuki. How we have to be cautious about using the development, because many times and more often than not this very same development is harmful to all of us, and I'll throw light on that. And then of course Manya Pujaniya Sir Sangh Chalak ji mentioned about the balance between the technology and the growth. However, nobody actually clearly mentions how to do that balance. कैसे करेंगे, कैसे balance आएगा, कौन सिखाएगा balance? And that is where the disaster is all about. And I've been, I'm a professor of IIT Bombay और मैं शादीशुदा हूँ. ये बताना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मैंने अपना घर 11 साल के लिए छोड़ा है. मैं लास्ट टाइम जब अपने घर गया था तो 2020 था और अगली बार जब मैं अपने घर जाऊंगा तो 2031 हो जाएगा. And I keep asking people, why a professor of IIT Bombay, married person, अपना घर 11 साल के लिए छोड़ सकता है, क्या कारण हो सकता है? तो दो कारण हो सकते हैं. एक तो पर्सन का दिमाग खराब हो गया, स्क्रू ढीला हो गया, या फिर सच में कोई जेन्युइन रीजन हो. मुझे देख के आपको मेरा स्क्रू ढीला लगता है? अरे कुछ तो बोलो. नहीं, thank you so much for being kind to me. Which means there is genuine reason, and this climate change is not a small problem, it is a life-threatening problem. And therefore, it is important to understand how to live on this planet, on this context. कैसे जिएंगे, क्या करना चाहिए? Are you all human by any chance? Yes. तो climate change किसने किया है? हमने किया. Wrong. That is also wrong. Because हम बोलते हैं तो किसी ने नहीं किया, भगवान भरोसे. किसने किया है? मैंने किया. Every single person on this planet, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो, शहर का हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, every single person is contributing to the environmental degradation and climate change, because we all consume material, we all consume energy. I'm very grateful that I got a chance to personally interact with him and know more about the Energy Swaraj Yatra which is now going on, and you can also be part of it. After that we had lunch with Air Force officers, and now it was time for a second session in which the speakers were Ravi Shankar Prasad sir, who is member of Lok Sabha, and Vishnu Jain, who is advocate at Supreme Court of India and also a face in Ramlala Ayodhya case. आपका अभिनंदन कि आप शोध करके आए. पहली बात ध्यान रखो, संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है और ईश्वर का आशीर्वाद है, ये कभी नहीं. ये देखो भारत का ओरिजिनल संविधान. मैं कुछ चित्रों को आपको दिखाऊंगा. फंडामेंटल राइट चैप्टर के ऊपर किसकी फोटो है? प्रभु राम श्रीलंका के विजय के बाद माता सीता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट रहे हैं. ये फोटो फंडामेंटल राइट के ऊपर है. इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. ये देखो, डायरेक्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी
किसकी फोटो है? प्रभु कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं महाभारत के युद्ध में। ये देखो, ये गौतम बुद्ध है, ठीक है? इसको पहचानते हो? नटराज, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर, उनकी फोटो देखा? इसमें रानी झांसी है, महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, गुरु गोविंद सिंह है, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है, ये ध्यान रखना। ये देखो, ये सब नेताओं का दस्तखत है। सबसे ऊपर राजेंद्र बाबू, बाद में नेहरू जी है, सभी का। The scourge of vote bank politics should not hold captive the rule of law and justice for विकसित भारत। ये पहली बात मुझे कहनी है आपसे। राम जन्मभूमि केस में इनके पिताजी, मैं भी वकील था प्रमुख रूप से, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो मैं देश के कानून मंत्री था, तो भारतीय लोग क्या क्या विरोध नहीं किया। मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई जिसमें ये साफ था कि 7वीं शताब्दी से मंदिर था, उसको लेकर उन्होंने क्या कि कहाँ की रिपोर्ट है, फालतू रिपोर्ट है, ये सब वामपंथी कबाल जो था। बस बेटा रख दो मैं तो एक चीज जो हमेशा मेरे मन को, मेरी आत्मा को झंझोड़ती रहती है, और पिछले काफी दिनों से, काफी सालों से मैंने सावरकर साहब को पढ़ा, अम्बेडकर साहब को पढ़ा, जैसे सर ने भी यहाँ पे बात कही कि सारे लोगों को अम्बेडकर जी को पढ़ना चाहिए, और एक बड़ी अच्छी उन्होंने किताब लिखी है, अम्बेडकर्स थॉट ऑन पाकिस्तान। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस किताब को पढ़ें, अपनी लाइब्रेरी में रखें। उसकी सॉफ्ट कॉपी भी इस समय इजिली अवेलेबल है सारी वेबसाइट्स पे। और इन दोनों बुक्स को अध्ययन करने के बाद मैंने ये पाया कि जो अंबेडकर साहब और सावरकर साहब जिस कश्मकश से, जिस कंट्रडिक्शन से गुजर रहे थे आज से 100 साल पहले, आज ठीक 100 साल बाद हमारा देश उसी कंट्रडिक्शन पे आके वापस खड़ा हुआ है। सारी डिबेट्स वैसी ही चल रही है। अभी यहाँ पे सर ने बात कही सेक्युलरिज्म की, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि सेक्युलरिज्म का वर्ड प्रोफेसर केटी शाह ने 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी में इंट्रोड्यूस किया था, और तीनों बार सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने रिजेक्ट किया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका वॉल्यूम नंबर 7 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बड़ी अच्छी स्पीच दी है, और उन्होंने कहा है कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। उसके बाद भी सबसे बड़ा देखिए कंट्रडिक्शन क्या है। भारतीय संविधान कैसे ओपन होता है? प्रीएम्बल, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, और एंड में लिखा है We on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब हम सारे लोगों ने 26 नवंबर 1949 को एक शपथ खाई थी कि हम संविधान की संरचना कैसे करना चाहते हैं। इस देश की लीगल हिस्ट्री में और पूरी वर्ल्ड की लीगल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई शपथ अगर खाई गई है एक पर्टिकुलर डेट पे, तो 25 साल बाद जाके बोला जाए कि अच्छा उस दिन जो हमने शपथ खाई थी हम भूल गए, उसमें कुछ बातें ऐड करना, और 2 बातें ऐड कर दी गई। ये बहुत बड़ा हिलेरियस एक जोक हुआ इस देश के साथ। इस अमूर्त मंथन के कार्यक्रम में हमें भी आपके साथ कुछ क्षण रहने का आपने अनुमति दिया। मैं आयोजकों को और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। भारत का युवा यदि सोसाइटी में पढ़ेगा, 18 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु, 22 वर्ष की आयु, और सोसाइटी की सोच क्यों, किस कारण से? क्योंकि कहीं न कहीं वर्तमान की अपेक्षा भविष्य की चिंता पहले मन में आ जाती है, और वह भविष्य की चिंता भीतर की ऊर्जा को, भीतर की क्षमताओं को इतना क्षीण कर देती है। भविष्य की चिंता भीतर के मेरा जो स्वय है, भीतर का मेरा आगे बढ़ने का भाव है, उसे इतना दुर्बल बना देती है
कि वर्तमान निरंतर जाता है। एक बात पर आप ध्यान रखें, भविष्य का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, वर्तमान ही भविष्य बनता है। चिंता नहीं होगी, जो ऊर्जा भविष्य की चिंता में व्यर्थ क्षय करनी है, वह ऊर्जा जब मैं मेरे अपने वर्तमान के कर्तव्य में नियोजित करूंगा, लगाऊंगा, तो आप निश्चित समझे भविष्य की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी, भविष्य अपनी चिंता स्वयं करेगा। सारे पैरेलल और प्लेनरी सेशंस फिनिश होने के बाद हमें एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक मिलना था, बट उसमें हम एग्जीबिशन एक्सप्लोर करने चले गए थे। रात में एसजीटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के तरफ से ही हमारे लिए एक कल्चरल इवेंट रखा गया था, जिसका कि नाम था धरोहर। और आप देख सकते हो कि ये जो तपोवन पेंडॉल था वो पूरी तरह से फुल था, हाउसफुल था। एंड यहाँ पे बहुत तरह की प्रस्तुतियाँ की गई, जैसे कथक, हरियाणवी नृत्य, राजस्थानी नृत्य, घूमर। एंड जब गरबा हुआ तब तो मैं खुद ऑडियंस में सामने चली गई थी, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद हुआ था ये नाट्य योगा, जिसमें कि बहुत सारे योगा पोस्टर्स दिखाए गए थे एक नृत्य के माध्यम से। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, जो मेरे साथ तुझको कर पाती उड़ाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यारे पसरा प्यारी माँ तुझे सलाम। उसके बाद हम मिले अमित जी रावत से, जो कि भारतीय शिक्षण मंडल युवा आयाम के नेशनल कन्वेनर है। दैट्स इट फॉर डे 2। स्टे ट्यून फॉर व्लॉग ऑफ डे 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।